First of all, I, Jyoti Sharma, Principal Sarvitkari Vidya Mandir Bhua, welcome you all in this e-Pathshala class organized by Sarvitkari Educational Society. Today, I am here to present a very important topic of class 12. Subject is Business Studies and the topic is Principles of Management. 12th class के syllabus में there are two different authors who describe the principles of management. One is Henry Fayol and the second one is F.W. Taylor. But today we will discuss the different 14 principles described by Henry Fayol. Okay, before start the concept, the topic, मुझे लगता है कि आपको principles और management का meaning जो है वो clear होना चाहिए. तो फर्स्टली हम वर्ड लेते हैं प्रिंसिपल्स. प्रिंसिपल का अगर हम हिंदी ट्रांसलेट करें तो इट मीन्स सिद्धांत. ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिंसिपल्स मीन्स वो सिद्धांत, वो रूल्स और वो रेगुलेशंस जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करने चाहिए ताकि वो अपने मेन एम को, मेन टारगेट को अचीव कर सके. नाउ द सेकेंड वर्ड इज मैनेजमेंट. The word management itself is a combination of three different words. अगर आप ध्यान से देखें तो तीन words इसके combination से ये पूरा word बना है management. And the three words are manage. First word is manage. This one. The second word is man. And the third word is T. Okay, here the alphabet T means tactful manner. Tactful manner. So the word management means manage the men in a tactful manner. In simple words we can say that management is an art of getting things done through others. दूसरों से काम करवाने की कला को हम मैनेजमेंट कहते हैं. सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या हुए? वो रूल्स और वो रेगुलेशन, वो सिद्धांत जिसे ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करके दूसरों से कैसे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करवाया जा सकता है ये बताते हैं. तो प्रिंसिपल्स हम अब शुरू करेंगे. स्टूडेंट्स, व्हेन आई वाज इन 6th क्लास, a sentence was given by my SST teacher to learn the different planets of solar system, and the sentence was, my very efficient mother just serve us nuts. इस सेंटेंस की हेल्प से हमने बहुत आसानी से अपने सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स को याद किया था. ये एक ट्रिक था. इसी तरह का एक ट्रिक मैं आपको यहाँ देना चाहूंगी जिससे आप ये 14 प्रिंसिपल्स आसानी से जो है वो याद कर सके. उसके लिए मैं आपको दो सेंटेंस दूंगी. फर्स्ट वन इज, फर्स्ट सेंटेंस में एक बच्चा अपने फादर से क्वेश्चन करता है, डैड UCSSR. ये क्वेश्चन एक चाइल्ड कर रहा है अपने फादर से और फादर रिस्पॉन्ड करता है OIC. अगर आप ध्यान से देखें तो इन दो वर्ड्स में टोटल 14 अल्फाबेट्स हैं और ये 14 अल्फाबेट्स ही आपको इन 14 प्रिंसिपल्स को याद करने में हेल्प करेंगे. देखते हैं कैसे. द फर्स्ट अल्फाबेट इज D, दैट रिप्रेजेंट डिवीजन ऑफ वर्क. Second alphabet is A, authority and responsibility. Third one is again D, it represents discipline. Next one is U, that is unity of command. C, centralization and decentralization. Again U, that is unity of direction. Next is S, that is stability of tenure. Again S, subordination of individual interest to general interest. Next alphabet is R, that is remuneration. In the answer, first alphabet is O, means order. I mean initiative. Again alphabet S means scalar chain. The next E represent equity and the last alphabet E is
Esperit de Corps. In this way you can easily learn the different principles. यहाँ एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि कई बार स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूजन रहती है कि इन प्रिंसिपल्स को हमें इसी सीक्वेंस में लिखना है, लेकिन इट डजंट मैटर. अगर आप आगे पीछे भी प्रिंसिपल लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है. 14 के 14 प्रिंसिपल्स की जो स्टेप है वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इस सेंटेंस से याद करोगे तो नेचुरली आपका ये सीक्वेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा. ठीक है जी. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क. नाम से ही क्लियर है, डिवाइड द वर्क. Here Henry Fayol insists that the whole work must be divided into sub-parts or sub-units and then assigned to the employees, and to those employees who are efficient or who are interested to do that particular work, who have skill to do that particular work. मीन्स हेनरी फ्योल का कहना है कि एक पूरे काम को सब पार्ट्स में, छोटे हिस्सों में डिवाइड करके फिर हमें वो एम्प्लॉयज को देना चाहिए. उससे क्या होगा कि वो एम्प्लॉय जब उस छोटे पार्ट को रिपीटेडली करेगा, बार बार करेगा, तो वो उस काम में एफिशिएंट भी होगा और परफेक्शन भी उसकी और ज्यादा रेज होगी. लेट्स टेक एन एग्जांपल. आपकी एग्जांपल लेते हैं. स्टूडेंट्स को क्लास इंचार्ज ने क्लासरूम को डेकोरेट करने के लिए 5 चार्ट बनाने के लिए दिए. उसने एक स्टूडेंट को एक, दूसरे स्टूडेंट को दूसरा, तीसरे को तीसरा, इस तरह 5 बच्चों में वो चार्ट बनाने का काम दे दिया. लेकिन अगर आप हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल पर फोकस करें तो काम ऐसे भी डिवाइड किया जाता था, हम जा सकता था कि हम उसको सब पार्ट्स में डिवाइड कर दें. वो कैसे? एक बच्चे को हम उन 5 चार्ट की सिर्फ ड्राइंग करने को दे दें, दूसरे बच्चे को हम उन्हीं चार्ट्स पर कलरिंग करने के लिए दे दें, तीसरे बच्चे को हम उसकी कटिंग करने का काम दे दें. इस तरह अगर हम काम डिवाइड करके देते हैं तो नेचुरली बच्चा जो ड्राइंग कर रहा है उसकी ड्राइंग में परफेक्शन हो जाएगी, जो कलरिंग कर रहा है उसकी कलरिंग में परफेक्शन हो जाएगी. ठीक है जी. सेम हैपेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा है. सपोज करो ऑर्गेनाइजेशन में फर्नीचर में टेबल बनाने का काम दिया गया एम्प्लॉयज को. अगर वो काम एक एम्प्लॉय वुड कटिंग करेगा, दूसरा एम्प्लॉय जो है वो उसके पार्ट्स को बनाएगा, तीसरा उन पार्ट्स को जोड़ेगा, चौथा उसे पॉलिश करेगा. इससे क्या होगा? काम जब बंट गया तो बार बार वो काम करने में एम्प्लॉयज में परफेक्शन जो है वो रेज होती है. सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क. लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. What does the word authority means? Authority means right to do the work, adhikar. And what does the word responsibility mean? Responsibility means duty to do that work. Henry Fayol focuses there must be a balance in authority and responsibility. Authority और responsibility में balance होना बहुत जरूरी है. अगर हम एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा अथॉरिटी दे दें तो एम्प्लॉयज उस अथॉरिटी का गलत फायदा उठा सकते हैं. और अगर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए हम थोड़ा सा राइट दें या राइट दें ही ना, तो वो पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फुलफिल करेगा. अगेन हम एक एग्जांपल लेते हैं आपके क्लास की. क्लास इंचार्ज ने स्टूडेंट की ड्यूटी लगाई कि यू हैव टू कंट्रोल द क्लास, यू हैव टू माइंड द क्लास. अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको हमने असाइन कर दी, बट उसको अथॉरिटी कोई नहीं है. ना तो वो बच्चे को क्लासरूम में खड़ा कर सकता है, ना वो क्लास से बाहर बच्चे को खड़ा कर सकता है, ना वो ब्लैक बोर्ड पे उसका नाम लिख सकता है. तो हाउ कैन ही और शी कैन परफॉर्म हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली? कैसे वो पूरा कर पाएगा? ठीक है जी. सेम हैपेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही है. एम्प्लॉयर ने 100 शर्ट्स बनाने का काम दे दिया, 10 दिन में कंप्लीट होनी चाहिए. वर्कर्स ने काम भी शुरू कर दिया, लेकिन इन बिटवीन रॉ मटेरियल खत्म हो जाता है. शर्ट बनाने के लिए वी नीड फैब्रिक, वी नीड थ्रेड, वी नीड कलर्स, वी नीड बटन्स और अदर रॉ मटेरियल. अगर वो खत्म हो जाता है, अब एम्प्लॉय को अथॉरिटी नहीं है कि वो रॉ मटेरियल परचेज कर पाए, तो कैसे वो शर्ट्स को टाइमली प्रिपेयर कर पाएगा? इसलिए अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं होगी. So Henry Fayol insists that there must be a balance between authority and responsibility. जितनी जिम्मेदारी दी जाए उतना अधिकार भी मिलना चाहिए.
तभी वो उसे एफिशिएंटली पूरा कर पाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन। स्टूडेंट, दिस वर्ड इज वेरी मच फेमिलियर टू यू ऑल। स्टूडेंट होने के कारण आपने ये वर्ड बहुत बार अपने स्कूल में भी, अपने घरों में भी सुना होगा। डिसिप्लिन का मतलब फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऑर्गेनाइजेशन में भी जो रूल्स और जो रेगुलेशंस बनाए होते हैं उसे फॉलो करना जरूरी है, तभी जो रिजल्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन का वो बेस्ट आ सकता है। अगर हम रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते तो इंडिविजुअल को तो लॉस होता ही है, ऑर्गेनाइजेशन को भी लॉस होता है। हेनरी फ्योल का कहना है कि डिसिप्लिन सिर्फ एम्प्लॉय के पार्ट पे ही पूरा नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयर को भी डिसिप्लिन का पूरा ध्यान रखना होगा। एम्प्लॉयर के पार्ट पे कैसे डिसिप्लिन पूरा होगा? सपोज करो, एग्जांपल लेते हैं हम कि एम्प्लॉयर ने कहा कि अगर आप काम को 10 दिनों में पूरा कंप्लीट कर लोगे तो मैं आपको बोनस दूंगा। अब वो काम वर्कर्स ने कंप्लीट कर लिया, लेकिन एम्प्लॉयर ने उनको बोनस नहीं दिया। इट मींस वो इनडिसिप्लिन क्रिएट हुआ, डिससैटिस्फैक्शन रेज होगी एम्प्लॉयज में, जिससे काम अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा। सो डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर? द नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है ये। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस। एक ही बॉस से ऑर्डर जो है वो कन्वे होना चाहिए वर्कर्स को। एक ही बॉस से मतलब एम्प्लॉयज को पता हो कि उन्होंने किससे ऑर्डर लेना है और किसका ऑर्डर फॉलो करना है। अगर बॉस एक से ज्यादा हो जाते हैं कि एम्प्लॉय के ऊपर, तो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा कि वो किसका कहना पहले माने और किसका कहना बाद में माने। एग्जाम्पल देखते हैं हम। सपोज ये एक बॉस है और उसके अंडर ये 4 वर्कर जो हैं वो काम कर रहे हैं। ये बॉस इसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, इसको भी ऑर्डर देगा, इसको भी ऑर्डर देगा, इसको भी ऑर्डर देगा, और ये चारों एम्प्लॉयज को पता है कि उन्हें इस बॉस से ऑर्डर रिसीव करना है। ठीक है, लेकिन अगर इस प्रिंसिपल को खत्म किया जाए या तोड़ा जाए तो क्या होगा? अगर 2 बॉस हो जाते हैं तो ये बॉस भी इसको ऑर्डर देगा, ये भी इसको देगा, ये इसको भी देगा और ये इसको भी देगा। नाउ द एम्प्लॉयज गेट कंफ्यूज्ड कि वो किसका ऑर्डर माने और किसका ऑर्डर ना माने। ठीक है, कंप्लीट नहीं हो पाया, और अगर इसका कंप्लीट नहीं होता तो वो इसका नाम लगा देते हैं कि इसका काम कर रहे थे, इसलिए हमारा आपके द्वारा दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम पूरा नहीं कर पाए। तो एक बहुत बड़ा बहाना जिसे हम कहते हैं वो एम्प्लॉयज को मिल सकता है। इसलिए हेनरी फ्योल का कहना है कि देयर मस्ट बी वन बॉस, ऑर्डर मस्ट बी गिवन फ्रॉम ओनली वन बॉस, और उसे क्लियर हो कि मुझे किसका ऑर्डर मानना है। ठीक है जी। Now, the next principle is centralization and decentralization. What does the word centralization mean? Centralization means power in few hands or only in the hands of top level management. And what does the word decentralization mean? Decentralization means distribution of power among subordinates. हेनरी फ्योल का कहना है इसमें, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसका ये कहना है कि ना तो ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए और ना ही कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। सेंट्रलाइजेशन मींस कि एक सेंटर, पावर सिर्फ इसके हाथ में और सभी वर्कर्स जो उसके अंडर काम कर रहे हैं वो उसके हाथ में पावर है, तो सभी इसी की तरफ देखेंगे किसी भी डिसीजन के लिए। कोई भी डिसीजन वो अपने से नहीं ले सकेंगे, उसे सिर्फ इनके टॉप लेवल मैनेजमेंट पर ही फोकस करना पड़ेगा। इससे ड्रॉबैक क्या हो सकती है? डिले इन डिसीजन। सभी डिसीजन अगर एक पर्सन लेगा या एक आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन लेंगे तो नेचुरली डिसीजन लेने में दिक्कत हो सकती है। वर्कर्स अपने बिहाफ पे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। और अगर डिसेंट्रलाइजेशन है, सारा ही अथॉरिटी, सारी ही पावर टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी वर्कर्स को,
तो टॉप लेवल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सभी वर्कर्स अपने बिहाफ पे ही डिसीजन लेंगे और ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है वो सही ढंग से नहीं होगा। इसलिए ना तो कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड हो, ना ही डिसेंट्रलाइज्ड हो। उसका कहना है कि देयर मस्ट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ द नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक बात क्लियर कर दूं, कई बार बच्चों को यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और यूनिटी ऑफ कमांड में जो है वो कंफ्यूजन रहती है। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक बॉस से डिसीजन आना, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मींस एक दिशा में काम करना। वन यूनिट वन प्लान, एक यूनिट के लिए एक ही प्लान होना चाहिए और उसी प्लान को ध्यान में रखकर सभी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को काम करना है। डायरेक्शन मींस, हिंदी में अगर बात करें तो डायरेक्शन का मतलब है दिशा। एक ही दिशा में काम होना चाहिए, तभी हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं, टारगेट को अचीव। Stability of tenure. What does the word stability? Stability word लिया गया है stable word से। Stable means ठहराव, रुकाव। ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय काम करता है तो उसको उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए एक प्रॉपर जो है वो स्टेबल होना उसका जरूरी है। उसे प्रॉपर टाइम पीरियड मिलना चाहिए कि वो अपना कैलिबर, अपना पोटेंशियल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में दिखा सके। अगर ऑर्गेनाइजेशन में उसको बार बार चेंज किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है या उसको टर्मिनेट किया जाता है, तो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा और वो अपना 100% पोटेंशियल या अपना 100% उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे पाएगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वक्त जो नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, उसे उस ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को हैंडल करने में, अपने आप को स्टेबल करने में कुछ समय लगता है, तो वो समय उसे जरूर मिलना चाहिए। अगर वो प्रॉपर टाइम नहीं मिलता और उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है या उसको शिफ्ट कर दिया जाता है, तो वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक जॉब इनसिक्योरिटी उसके दिमाग में रेज होगी कि मुझे पता नहीं कब जॉब से निकाल दिया जाए या शिफ्ट कर दिया जाए। तो इसलिए इस प्रिंसिपल का ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत जरूरी है, स्टेबल होना बहुत जरूरी है। क्लियर स्टूडेंट? आपकी भी अगर हम एग्जांपल लें तो अगर इन केस आप स्कूल चेंज करते हो, फादर की ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर स्कूल, आपको शिफ्ट होना पड़ता है, तो आप भी उस स्कूल में एडजस्ट होने में कुछ समय लगाओगे, तभी अपना 100% या अपना जो परफेक्ट है वो दे पाओगे। और इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही है कि एम्प्लॉय को काम करने के लिए एक प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए, तभी उसकी शिफ्टिंग हो, नहीं तो उसके मन में एक इनसिक्योरिटी जो जॉब की वो रेस हो जाती है। सो ये 7 प्रिंसिपल्स थे। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल हम करते हैं, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन का मतलब है यहाँ पे मिलान करना। किसका? इंडिविजुअल इंटरेस्ट का। इंडिविजुअल यहाँ कौन है? वो पर्सन, वो एम्प्लॉयज जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उस इंडिविजुअल इंटरेस्ट का, और जनरल इंटरेस्ट मींस सबका कॉमन इंटरेस्ट, जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है उसमें कोलैबोरेशन, सबऑर्डिनेट होना चाहिए, उसमें मिलान होना चाहिए। हर पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, नेचुरली उसका एक पर्टिकुलर मोटिव भी रहता है, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट भी रहता है। कोई एम्प्लॉय जो है वो ज्यादा से ज्यादा अर्निंग के लिए काम कर रहा है, कोई एम्प्लॉय है जो अपने प्रेस्टीज के लिए काम कर रहा है, कोई एम्प्लॉय अपने एक्सपीरियंस के लिए काम कर रहा है, लेकिन सबको अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट साइड पे रख के ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पे काम करना है। ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट मस्ट सुपरसीड, उसको ऊपर रख के काम करना है। उससे क्या होगा कि जब ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट अचीव होगा, उसका इंटरेस्ट पे काम करेंगे, तो अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाता है। ठीक है जी। एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एक एम्प्लॉय मैक्सिमम अर्निंग करना चाहता है, मतलब फाइनेंशियली रेज होना चाहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिले, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल रही है, वो ज्यादा सैलरी पे नहीं कर सकती, तो
उस केस में इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल को अपना इंटरेस्ट सेक्रीफाइस करके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पर चलना चाहिए। और जब ऑर्गेनाइजेशन अपना टारगेट अचीव कर लेगी तो नेचुरली नेक्स्ट ईयर वो प्रॉफिट के साथ रेज होगी और इंडिविजुअल का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज नाइन्थ प्रिंसिपल इज रेम्यूनरेशन। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हर पर्सन को क्या मिलता है? सैलरी या वेजेस मिलते हैं, और उस सैलरी और वेजेस को ध्यान में रखकर वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। वो सेकंड प्रायोरिटी हो सकती है, थर्ड प्रायोरिटी हो सकती है, लेकिन सैलरी लेना जो है वो इंटरेस्ट रहता है किसी भी इंडिविजुअल का। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी फेयर एंड जस्ट सैलरी और वेजेस पेड टू द एम्प्लॉयज। सही जो वेजेस हैं या सही सैलरी जो है वो एम्प्लॉयज को मिलनी चाहिए। अब सही सैलरी क्या, कैसे हम उसको जज करेंगे कि वो सही है या नहीं? जो काम, जिस तरह का काम ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय से लिया जाता है उस काम के अकॉर्डिंग उसकी सैलरी जो है वो जरूर होनी चाहिए। अगर ये प्रिंसिपल अवॉइड किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या होगा कि जब वो सैलरी फुल मतलब अच्छे ढंग से नहीं ले पाएगा या अपनी इच्छा के अनुसार उसको नहीं मिलेगी तो एक डिससेटिस्फेक्शन उसके मन में आ जाएगी। वो कोशिश करेगा कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन को स्किप करके दूसरे में शिफ्ट हो जहां उसे अच्छी सैलरी मिल सकती है। तो इसलिए इस शिफ्टिंग से बचने के लिए या एम्प्लॉयज की डिससेटिस्फेक्शन ना रेज हो उनके अंदर, उससे बचने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को फेयर और जस्ट सैलरी जो है वो जरूर मिलनी चाहिए ताकि वो अपने मन से 100% अपना दे सके ऑर्गेनाइजेशन को और ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है वो अचीव हो पाए। एग्जाम्पल के साथ हम कर सकते हैं, लेट के एक पर्सन आप एम्प्लॉयमेंट के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखते हो उसको और उससे पूछते हो कि उसकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है। अब वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे 5,000 मिलना चाहिए। आप उसे कहते हो ठीक है मैं 5,000 दूंगा, आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो। अब उसको लगता है कि जितना मैंने चाहा या जितना मेरा इंटरेस्ट था मुझे उतनी सैलरी मिल रही है तो मैं क्यों ना परफेक्टली काम करूं। वो काम बहुत परफेक्टली करेगा। लेकिन वहीं अगर आप 3,000 पे उसको हायर कर लेते हो, काम तो वो तब भी करेगा लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात जरूर रह जाती है कि मेरा 2,000 का काम जो है वो एक्स्ट्रा हो रहा है, मुझे 5 मिलना चाहिए था और 3 मिल रहा है। सेटिस्फाइड होगा और जिसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज ऑर्डर। ऑर्डर, हियर द वर्ड ऑर्डर डजंट मीन डायरेक्शन और कमांड। यहाँ कमांड देना ऑर्डर का मतलब नहीं है। ऑर्डर का मतलब है फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड फॉर एवरीवन। हर पर्सन के लिए देयर मस्ट बी ए प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन मीन्स हर चीज के लिए और हर एक के लिए एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। अगर किसी मशीनरी पे वर्कर काम कर रहे हैं तो वर्कर को पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी मशीनरी पे काम करना है और कहाँ खड़े होकर काम करना है, कौन कौन से टूल्स हैं जो मुझे इस मशीनरी को रन करने के लिए चाहिए और वो कहाँ रखे हैं, उनकी प्लेस कहाँ है। एक प्रॉपर प्लेस होना बहुत जरूरी है। सपोज करो किसी एम्प्लॉय को इमरजेंसी सुपरवाइजर से कोई आइडिया या कोई डिसीजन लेना है उसको, तो वो उससे कांटेक्ट करेगा। अब उससे कांटेक्ट कैसे करेगा? जब उसको पता है कि उसका एक प्रॉपर कैबिन है, वो कैबिन में बैठे होंगे, वहां जाकर वो उनसे मिलेगा और अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेगा। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में जो सामान रखा जाता है वो एक प्रॉपर प्लेस्ड होना चाहिए, इम्प्रॉपर जगह नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक घर की एग्जाम्पल लेते हैं। किचन में आपके मदर काम करते हैं तो आपने कभी देखा होगा किचन में जाके कि किचन में यूज होने वाला सारा सामान किचन में ही होता है, वो आगे पीछे नहीं होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा अगर आप ध्यान से देखें तो जब हम गैस जलाते हैं तो सबसे पहले इनिशियली हमें क्या चाहिए? लाइटर। और आप देखोगे कि सभी घरों में लाइटर की प्लेसमेंट जो है वो गैस के पास होगी। क्या मतलब है इसका? कि इमीडिएटली जो चीज रिक्वायर्ड है उसके लिए वो हमें मिल सके। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल लें तो सपोज एक मशीन पे 10 वर्कर काम कर रहे हैं और काम कुछ इस तरह का है कि उन्हें बार बार 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद अपने हाथ साफ करने पड़ते हैं। तो उसके लिए वॉश बेसिन की प्लेसमेंट नियर टू देयर वर्क होनी चाहिए ताकि वो आसानी से जाके टाइम वेस्ट किए बिना अपना काम रेगुलरिटी से
कर सकें, नहीं तो अगर वो टूल्स ढूंढने में या सुपरवाइजर को ढूंढने में लगे रहेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सही ढंग से नहीं चल पाएगी। Our next is 11th principle, that is initiative. Initiative means first step with self motivation. आप किसी भी पर्सन को मोटिवेट करके काम करवा सकते हो, हाँ तुम बहुत अच्छा करते हो, तुम और भी अच्छा कर सकते हो, ऐसा कह के आप किसी भी एम्प्लॉय से काम करवा सकते हो, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन जब तक रेज नहीं होगी तब तक काम सिर्फ आपकी मोटिवेशन पे ही चलेगा। सेल्फ मोटिवेशन जब रेज हो जाएगी तो इंडिविजुअल खुद से वो काम करना शुरू करेगा, इनिशिएट लेके, पहला स्टेप लेके, लेकिन उसके लिए सेल्फ मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। अब वो सेल्फ मोटिवेशन कैसे आएगी? आप सबको पता है कि फाइनली जो टारगेट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, या जो पॉलिसीज होती हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं, या जो रूल्स होते हैं, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर उन पॉलिसीज को, उन रूल्स को बनाने से पहले वर्कर से उनसे आइडियाज या उनके सुजेशन मांगे तो क्या होगा? तो वर्कर्स में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रेज होगा, उनको लगेगा कि उनसे भी आइडियाज और सुजेशन लिए जा रहे हैं उस काम के लिए जो काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। वो आइडियाज और वो सुजेशन देके उनको एक सेटिस्फेक्शन होगी अपने मन में कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन हमारी इंपॉर्टेंस को समझती, उन आइडियाज को, उन सुजेशंस को अप्लाई किया जा रहा है या नहीं अप्लाई किया जा रहा, दैट इज अनदर थिंग, वो अलग बात है, लेकिन उनसे आइडियाज और सजेशन लिए जा रहे हैं, उनके लिए यही बहुत बड़ी बात होगी। वो जो सेटिस्फेक्शन उसके अंदर रेज होगी वो ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो लेके आएगी। इसलिए इनिशिएटिव का प्रिंसिपल जो है वो जरूर अप्लाई होना चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। Our 12th principle is scalar chain. Scalar chain means line of authority. Line of authority. Chain आप समझते हो, connected from one person to another. A से B connected है, B से आगे नीचे C है वर्कर, ऐसे ही D है। ये कनेक्शन, ये चेन कहलाती है। इसी तरह इसके अंडर काम करने वाले E, then F, then G। ठीक है, तो स्केलर चेन के अकॉर्डिंग अगर डी एम्प्लॉय को जी एम्प्लॉय तक कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है, कोई मैसेज कन्वे करना है, तो उसके लिए प्रॉपर चेन का फॉलो होना जरूरी है। प्रॉपर चेन मींस द इंफॉर्मेशन पहले मूव होगी सी को, फिर सी से बी को, फिर बी से ए को, देन ई, देन एफ, और फिर वो इंफॉर्मेशन जाएगी जी तक। उससे क्या होगा, एक प्रॉपर चेन फॉलो करने से इंफॉर्मेशन जो है वो एज इट इज सबको कन्वे होगी और सबको इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम रहती है, इसलिए हेनरी फ्योल ने स्केलर चेंज के लिए एक एक्सेप्शन भी दिया है। उसको लगता है कि इस तरह की अगर हम चेन फॉलो करेंगे तो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकती है, लंबा समय लग सकता है। ई ने जी को इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, सॉरी डी ने जी को इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो इतने स्टेप्स लेके जाना पड़ेगा उसे स्किप नहीं करना है कोई भी स्टेप। इसके लिए उसने एक एक्सेप्शन दी है कि डी डायरेक्टली भी जी को इंफॉर्मेशन दे सकता है, एंड दैट इज नोन एज गैंग प्लांक। उसे हम कहते हैं गैंग प्लांक। ये कई बार वन वर्ड में आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन। अब गैंग प्लांक क्या है, ये तभी यूज होगा जब इमरजेंसी हो। नॉर्मल केसेस में प्रॉपर चेन ही फॉलो की जाएगी। जर्नल एक एग्जांपल मैं स्कूल की लूं, क्लास में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो क्लास का बच्चा मॉनिटर को बताएगा, मॉनिटर क्लास इंचार्ज को, क्लास इंचार्ज प्रिंसिपल को। ठीक है, ये एक चेन रहती है। लेकिन प्रॉब्लम अगर इस तरह की है कि इमीडिएट ही बताने वाली है चेन को फॉलो किए बिना, जैसे आपस में बच्चे फिजिकली लड़ पड़े, अब वो वेट तो नहीं करेगा कि मैं पहले मॉनिटर को बताऊं, फिर मॉनिटर क्लास इंचार्ज को बताए, फिर वो प्रिंसिपल को बताए। उस समय उस चेन को तोड़ा जा सकता है, दैट इज नोन एज गैंग प्लांक। क्लियर? नेक्स्ट इज 13th प्रिंसिपल, इक्विटी। इक्विटी वर्ड भी आपने बहुत बार सुना होगा, इक्वालिटी से लिया गया है। इक्विटी मींस काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट।
ये ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या किसी भी जगह इसे फॉलो किया ही जाना चाहिए। हर एक पर्सन के साथ जो किसी जगह पे काम कर रहा है, हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सभी पर्सन्स के साथ काइंड, फेयर और जस्ट ट्रीटमेंट होनी चाहिए, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए। बायसनेस अगर और पार्शियलिटी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में रेज होती है तो उसमें एम्प्लॉयज जो है वो अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनके ध्यान में यही बात रहती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे पर्सन के साथ क्या किया जाता है, पार्शियलिटी की जाती है या बायसनेस होती है, फिर वो परफेक्शन से काम नहीं कर पाता। एग्जाम्पल अगर हम लें तो ए और बी दो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। ए नॉर्मल वर्कर है, बी जो है वो मैनेजर का रिलेटिव हो सकता है, लेकिन दोनों की पोजीशन सेम है। दोनों सुबह आने का टाइम 8 बजे है, दोनों आ भी रहे हैं, लेकिन 3, 4, 5, 6 दिन बी एम्प्लॉय जो है वो लेट आता है घंटा, तो एम्प्लॉयर जो है वो उसे अवॉइड करता है उसके लेट आने को। लेकिन वहीं अगर एक एम्प्लॉय, ए वाला एम्प्लॉय एक दिन भी लेट आए तो उसकी हाफ सैलरी जो है, हाफ डे की सैलरी काट ली जाती है। अब इससे उसके बाद में क्या होगा कि वो उसका रिलेटिव है, वो उसका फ्रेंड है, इसलिए उसके 4, 5, 6 दिन लेट आने पे भी अवॉइड किया गया और मेरे एक दिन को भी अवॉइड नहीं किया गया। वो जो दिमाग में वो उसके बैठेगा वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। एक ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए सबके साथ, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन का एटमॉस्फेयर जो है वो अच्छा नहीं रहता, जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को लॉस जरूर होता है। Now the last principle is एस्पेरेट डी कॉप्स। इस प्रिंसिपल को अगर हम वन वर्ड में एक्सप्लेन करें तो मीन्स टीम वर्क। टीम वर्क आप सबको पता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वन मैन शो नहीं होती, एक पर्सन अकेला काम नहीं करता, ग्रुप ऑफ पीपल काम करते हैं। और ग्रुप ऑफ पीपल जब काम करते हैं तो जब तक काम मिलके नहीं होगा आप उस काम को अच्छे ढंग से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हेनरी फ्योल का कहना है कि टीम वर्क ऑर्गेनाइजेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। अगर एग्जाम्पल के साथ अगर हम देखें तो 4 एम्प्लॉयज को डिफरेंट काम दिया गया, 10-10 शर्ट बनाने का काम दिया गया। अब वो जो 10 शर्टें बना रहा है, एक एम्प्लॉय ने तो अपने टाइम पे उसे कंप्लीट कर लिया, दूसरा एम्प्लॉय किसी वजह से उसे छुट्टी करनी पड़ गई और वो काम कंप्लीट नहीं कर पाया। अगर जिस पर्सन ने काम कंप्लीट कर लिया है वो दूसरे पर्सन की हेल्प करता है या तीसरे की हेल्प करता है तो वो क्या कहलाता है, टीम वर्क। इकट्ठे मिलके काम करके ऑर्गेनाइजेशन के सभी टारगेट्स को बड़ी आसानी से अचीव किया जा सकता है। और ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट अगर हम अचीव करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला हर एम्प्लॉय उससे जो है वो पॉजिटिवली इफेक्ट होता है। सो दीज आर द डिफरेंट प्रिंसिपल, 14 प्रिंसिपल्स जो हेनरी फ्योल ने हमें दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं भी किसी प्रिंसिपल में कोई दिक्कत है तो आप इस ऑडियो वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।